Hello friends, today's lecture we are going to study a poetic grammar, that's figures of speech. Children, whenever we study a particular poem, one of the things that generally troubles us is related to the figures of speech. So I'm going to divide this lecture into two different parts. Today we will discuss few of the figures of speech, and in the coming lecture we'll be discussing with some other figures of speech. Children, first of all, let's try to understand what exactly is the meaning of figures of speech. Figures of speech basically are poetic languages. Whenever we speak in a normal language, we don't use figures of speech, but whenever we are giving a speech, addressing the public or saying a poem, then we make use of figurative or metaphorical languages. Children, normally poets जब बात करते हैं या फिर हम like people like us, when we speak we might have a very normal language, but when poets speak they have got a very decorative language. Now that decorative language is basically referred to as the figures of speech. If someone is very sad, what does a person say? That I am very sad. A poet would go beyond that normal language just to decorate the sentence. He might say that like my life is so much filled with sorrow that if I cry, all the rivers of this world would fill with my tears. Now that's again, as I said, like a decorative language. So children, one by one we are going to discuss the different figures of speech for today's lecture. So beginning with the most easiest one that we have, this figure of speech, children, is referred to as alliteration. As you can see, the explanation for it is given on your screen. There is a repetition of sound within a phrase or a sentence. चलो एक ही sentence के अंदर जब sounds repeat करते हैं, sound का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Letter or a group of letters. अच्छा, suppose if I say my brother bakes a bread. So you can see that the sound of B or sound of BR is repeating, and that actually gives a very pleasing sound effect. What is the example that is mentioned on your screen, children? She sells seashells on the seashore. जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको S का साउंड स्ट्रेस होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे. Every time that S is sounding, and that is the sounding effect. Or you have gone through some tongue twisters. Got a tongue twister which says that Betty bought a better butter, but the better butter was bitter. So she went to the market and bought better butter to make bitter butter better. Okay, now here, children, did you notice one thing? The sound of B has repeated so many times. So whenever in one single line, children, the sound of a particular letter or a group of letter repeats, then we name that figure of speech as alliteration. Okay? इसका explanation लिखने का रहेगा तो आप कैसे लिखोगे? The sound of letter S is repeated for pleasing poetic effect. The second one, children, that's termed as apostrophe. Poets जब भी बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर को या फिर वो जो पूरा इमेजरी आता है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए sometimes the poets speak to those things which are not alive as if these things were actually alive. So you can just see the explanation, children, on a screen. Speaking to an object or an item that is not alive as if it is in fact alive. तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग डायरेक्टली एड्रेस करते हैं जैसे कि वो चीज हमारी बात सुन रही है. चिल्ड्रन, whenever we stand in front of the statue of God, क्या बात करते हैं हम लोग? Oh God, please help me. Now we know that God is physically not present in front of us, लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्टली उनसे बात करते हैं. अच्छा, ज्यादातर सिचुएशंस में एपोस्ट्रोफीज ओ ए लेटर से स्टार्ट होते हैं. Oh heaven, please send your blessings. Now I am directly talking to heaven as if heaven is listening to me. या फिर oh trees, give me some air. Now here I am addressing to a tree as if it is a living thing. यहाँ पे जो एग्जाम्पल कोट किया गया बच्चों लोग, कम ऑन ट्राउजर्स यू हैव टू फिट मी, कि हम लोग ट्राउजर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि आपको मुझे फिट करना है. सो दिस इज एपोस्ट्रोफ.
सो जब भी साउंड रिपीट होता है तो एलिट्रेशन। जब हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग से डायरेक्टली बात करते हैं, जैसे कि वो हमारी बात सुन रहा है, देन चिल्ड्रन वी रिफर टू इट एज अ एपोस्ट्रोफ। देन द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, इट्स नोन एज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस बेसिकली आर contrasting or contradicting ideas are put together in a statement and balanced. So as you can see on your screen children, contrasting or opposite ideas in a statement that is balanced. तो एक ही सेंटेंस में या तो ऑपोजिट आइडियाज या तो फिर ऑपोजिट वर्ड्स को जब यूज किया जाता है तो उसको हम लोग एंटीथेसिस बुलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन वी हैव गॉट मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो there are two opposite words, propose and dispose. तो एग्जाम में चलो जब भी आप इसका एक्सप्लेनेशन मेंशन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन दैट द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस, और एक्सप्लेनेशन में लिखना है ऑपोजिट आइडियाज आर एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स proposes and disposes. Suppose like for example children, there could be n number of examples when we say I was waiting for you night and day. तो वहां पे बच्चे लोग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज नहीं है लेकिन ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। अभी सक्सेस और फेलियर चिल्ड्रन दीज आर द ऑपोजिट वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड हियर। सो किसी भी सेंटेंस में बच्चे लोग जब दो ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे आपको, अच्छा वी कैन अंडरस्टैंड दैट द फिगर ऑफ स्पीच कैन बी नेम्ड एज एंटीथेसिस। देन हियर वी हैव गॉट द नेक्स्ट वन, यूफेमिज्म। बच्चे लोग नॉर्मल लाइफ में बात करते हो हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिससे सामने वाले को कभी कभी मतलब बुरा लग सकता है, दैट मीन्स दे आर डीम्ड ऑफेंसिव। तो पोएटिक लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, आपको वही मीनिंग बताना है सामने वाले को, बस थोड़ा सा उसको मीठा मीठा करके आपको कुछ बुरी बात सुनानी है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ अ फ्रेज विच माइट बी डीम्ड एज ऑफेंसिव बाय वन विच इंप्लाइज द सेम थिंग बट डज नॉट कैरी ऑफेंस विद इट। तो आप जब भी किसी से बात करोगे, अभी आपको जैसे किसी को बुरी खबर देनी है कि किसी का डेथ हुआ है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी से कि लाइक अ पर्सन हैज डाइड। लेकिन फिर आपको पता है कि अ पर्सन हैज डाइड जनरली लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइक ही हैज किक्ड द बकेट। ही हैज किक्ड द बकेट मींस ही हैज डाइड, या फिर वी से ही हैज पास्ड अवे। अच्छा चिल्ड्रन, हियर वी जनरली मीन दैट कि euphemism tries to just smoothen those offensive things which might be very bad to listen to. So suppose for example here we have got this example which says that आपको कुछ भी बात बतानी है, जैसे कि किसी का डेथ हुआ है, हम लोग बोलेंगे क्या, he has kicked the bucket। तो सामने वाला समझ जाता है कि like someone has died। चलो the next figure of speech in line is personification। ज़्यादातर पोएट्स जो अपने नेचर से डील करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नॉन लिविंग होती है, जिनमें जान नहीं होती। कभी कभी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी थोड़ा लाइफ डाल देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज डाल देते हैं, एंड देन दैट इज टर्म्ड एज पर्सोनिफिकेशन। एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अलाइव इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। एक नॉन लिविंग थिंग को चलो जब हम लोग ह्यूमन बींग्स का कोई क्वालिटी दे देते हैं तो इट इज रिफर टू एज अ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफाई, जैसे माई कार इज अ रियल ब्यूटी। नाउ कार यू नो चिल्ड्रन इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, और ब्यूटी एक ह्यूमन क्वालिटी होता है, तो हमने ब्यूटी ए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किसको एट्रीब्यूट किया यहाँ पे, कार को। सो वी कैन से दैट द क्वालिटी और द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ब्यूटी इज गिवन टू कार विच इज एक्चुअली अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, वी से दैट फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन द ट्री वाज स्टेयरिंग एट मी। अच्छा, ट्री इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्टेयरिंग एट समवन। एक ऑब्जेक्ट है वो चलो जो सपोज फॉर एग्जांपल माइट बी इट्स अलाइव बट इट हैज एक्चुअली गिवन सम ह्यूमन क्वालिटी हियर, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। देन चिल्ड्रन वी कम थ्रू सिमिली। सिमिलीज बेसिकली हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करते वक्त बताएंगे कि दोनों चीज़ों में सेम क्वालिटी है, और उसके लिए हम लोग कुछ वर्ड्स यूज करते हैं बच्चों, दैट इज लाइक, एज, सो। हर हेयर वॉज एज गोल्डन एज द सन। तो बच्चों लोग उसके हेयर को और सन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में कॉमन क्वालिटी कौन सा है, गोल्डन। एज कूल एज कुकम्बर, फॉर एग्जाम्पल एज स्लो एज स्नेल, फॉर एग्जाम्पल एट वाइट एज स्नो। ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं सिमिली के लिए। चिल्ड्रन दिस इज समथिंग लाइक डायरेक्ट कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Then children we come towards repetition.
रेपिटेशन में क्या होगा, एक ही सेंटेंस में हम लोग किसी वर्ड को या फिर किसी फ्रेज को एक ही लाइन में लेकिन रिपीट करेंगे, विच एक्चुअली गिव्स अ प्लीजिंग साउंड इफेक्ट. Children, here I have written something, the औदुंबर, the neem and the शेवगा, these are the name of some trees. और हर एक ट्री से पहले उन्होंने चलो द वर्ड मेंशन किया यहाँ पे, that gives it a very pleasing sound effect. अच्छा, तो आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको पहले क्या लिखना है, रेपिटेशन. उसके नीचे क्या लिखोगे, द वर्ड एपोस्ट्रोफी डाल के क्या लिखोगे, द इज रिपीटेड फॉर प्लीजिंग साउंड इफेक्ट. अच्छा, सिंपल एग्जांपल, वी से द रिवर, द सी एंड द ओशन, वहां पे भी आप देख सकते हो द वर्ड को रिपीट किया गया है. क्लियर. अच्छा, सिंपल एग्जांपल, माय हाउस, माय पीपल एंड माय प्रॉपर्टी, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. यहाँ पे कौन से वर्ड को रिपीट किया हमने, माय. सो दैट्स चिल्ड्रन रिफर टू एज रेपिटेशन. इसके बाद चलो बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, इसको हम लोग फॉर एग्जांपल वी समटाइम्स रिफर टू एज रिफ्रेन करके आता है. अच्छा, तो वहां पे या फिर देयर आर सर्टेन पार्ट्स कि डिपेंड करता है कि लाइक स्टार्टिंग का फ्रेज रिपीट करता है, फिर लास्ट का फ्रेज, अकॉर्डिंगली वी माइट हैव डिफरेंट नेम्स, लेकिन हमारे सिलेबस के लिए ये रेपिटेशन काफी रहेगा. देन चिल्ड्रन कम टू हाइपरबोल, समटाइम्स वी रिफर टू एज हाइपरबोले. हाइपरबोले चिल्ड्रन, इट्स नथिंग बट एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट. एग्जैजरेशन होता क्या है पता है मोस्टली हम लोगों को, किसी भी चीज को ज्यादा ओवर करके बताना, थोड़ा ड्रामेटिक बनाने का है. ठीक है, तो दैट्स बेसिकली रिफर टू एज हाइपरबोले. जैसे कि हम लोग कभी कभी पकाना बोलते हैं उसको. अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि एक पोएट है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसको बताना कि मुझे बहुत दुख हुआ है. लेकिन नॉर्मल आदमी बोलता है कि मुझे दुख हुआ है, एक पोएट बोलता है कि मुझे इतना दुख हुआ है कि अगर मैं रोना चालू कर दूं तो इस दुनिया की सब नदियों को मैं अपने आंसुओं से भर सकता हूं. Now we know that he is feeling sad, but not so sad that he can fill the rivers with his tears. Children, that's exactly happened. My bag weighs a ton. आपका बैग भारी है, हैवी है, लेकिन आप बोलते हो कि 1 टन वजन रहेगा. अभी आपको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स अ एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट चिल्ड्रन. क्लियर. अच्छा, एंड देन वी कम अक्रॉस द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, दैट्स रिफर टू एज लिटोट्स. इट्स अ अंडरस्टेटमेंट चिल्ड्रन व्हिच अप्लाइज द नेगेटिव टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अफर्मेटिव. सो लाइक हिज सिंगिंग इज नॉट टू बैड, उसका गाना इतना भी बुरा नहीं है. तो एक्चुअली आप बुरा नहीं हो बोल रहे, लेकिन आप बताना चाहते हो कि वो बुरा है करके. तो समटाइम्स इट्स समथिंग कमिंग क्लोजर टू आयरनी. आपको एक स्टेटमेंट बताना है, अच्छा आप उसको नेगेटिवली बात करते हो क्योंकि आप उसको अफर्म करना चाहते हो. सो सिंपल फॉर एग्जांपल के लिए जब मैं बोलता हूँ कि अरे यू आर नॉट टू फैट, बट आई एम टेलिंग यू दैट यू आर एक्चुअली फैट. सो दैट्स द फिगर ऑफ स्पीच चिल्ड्रन, दैट्स रिफर टू एज लिटोट्स करके बोला जाता है इसको. Clear? And for today's discussion children, the next figure of speech is referred to as a metaphor. थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने बात किया था सिमिली के बारे में. सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. जब मैं बोलता हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल समवन लुकिंग डार्क, तो बोले कि यू आर लुकिंग एज डार्क एज अ क्रो. लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कभी कभी हम लोग मजाक करते हुए बोलते हैं कि लाइक हाँ तू कौवे की जितना काला दिखता है करके. लेकिन फिर कभी कभी दोस्त लोग हैं, ज्यादा ही कोई मजाक कर रहा है, तो फिर जैसे एज डार्क एज अ क्रो. बट सपोज लाइक अगर हम लोग किसी को डायरेक्टली क्रो करके बताए तो कि हम लोग कोई बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है तो हम बोलते हैं अबे चुप ना कौवे. नाउ व्हाट्स दैट चिल्ड्रन, वी आर रिफरिंग टू समवन एज अ क्रो. अच्छा, डोंट बिहेव लाइक अ डोंकी. नाउ लाइक चिल्ड्रन दैट्स सिमिली, बट इफ वी डायरेक्टली कॉल समवन एज अ डोंकी देन इट विल बी नोन एज अ मेटाफर. इट्स इम्प्लाइड सिमिली चिल्ड्रन. हर एक सिमिली को मेटाफर बनाया जाता है, हर एक मेटाफर को सिमिली में कन्वर्ट किया जाता है. अ कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ अ डेजर्ट, तो लाइक आया तो सिमिली हो गया. लेकिन व्हेन वी से चिल्ड्रन दैट अ कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, तो वो क्या होता है, मेटाफर. सो कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स व्हिच शेयर समथिंग इन कॉमन. बट चलो कोई किसी को जिंदगी में राह दिखाने का काम करता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइक वो लोगों के लिए एक लाइट है. हाँ, लाइक बोलेंगे तो फिर सिमिली. लेकिन आई से चिल्ड्रन यू आर अ लाइट टू द वर्ल्ड. क्या बोला, यू आर अ लाइट टू द वर्ल्ड. चिल्ड्रन दैट वुड एक्चुअली मीन दैट वी आर रिफरिंग टू अ मेटाफर. Clear? So suppose these are the various figures of speech children we have discussed today. We'll be coming back with more figure of speech in the coming lecture. Till then, bye, take care, be safe, see you again. Hello students,
Welcome back. Children, we were discussing something related to the figures of speech. I told you what is the meaning of figure of speech. A small revision before we proceed with other types of figures of speech. Children, figures of speech is basically a very decorative language that is used to make speech or whatever is written more attractive. Okay? It's basically used at a times when poets create their poetic languages. Children, some of the figures of speech that we discussed last time, अगर एक ही सेंटेंस में साउंड रिपीट करेगा तो क्या नाम देने का है उसको? एलिट्रेशन. क्या रिपीट करेगा? साउंड. तो क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन. लेटर्स रिपीट करेंगे. चिल्ड्रन, देन वी आल्सो सॉ एपोस्ट्रोफी. जब भी हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे एड्रेस करते जैसे कि वो हमारे सामने है, हमारी बात सुन सकता है, तो उसको हम लोग एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. ठीक है? रिफरिंग टू अ पर्सन विच इज नॉट अलाइव एज इफ इट इज अलाइव. Maybe talking to the nature, talking to God, talking to the trees. Then children, we saw एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट या फिर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज अगर रखे जाएंगे तो क्या बुलाते हैं उसको? एंटीथेसिस. ऑपोजिट आइडियाज भी हो सकते हैं बच्चों लोग, ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं. आइडियाज इन द सेंस मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. हाँ, आई वाज स्टडीइंग नाइट एंड डे. Then also children, there are two words which are opposite, night and day. Then that's also an antithesis. Then we saw about euphemism. यूफेमिज्म क्या होता है बच्चों लोग? यूफेमिज्म मीन्स कोई भी हार्श बात होती है, कोई बुरी खबर होती है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा स्मूथ करके इस तरीके से बताते कि किसी को बुरा ना लगे. जैसे कि किसी का डेथ होता है तो हम लोग ये नहीं बोलते कि ही डाइड, वी कैन से दैट ही किक्ड द बकेट और ही पास्ड अवे. ओके. देन वी हैव गॉट पर्सोनिफिकेशन. एक आध चीज बच्चों लोग जो लाइव नहीं है या फिर अलाइव नहीं है, उसको जब हम लोग कोई ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, क्या देंगे उसको? ह्यूमन क्वालिटी. ठीक है? सो फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक दिस कि द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास दे टिकल्ड माय फीट. और उसकी बूंदें जो ग्रास के ऊपर गिरी हुई थी वो मेरे पैरों को गुदगुदी कर रही थी. हाँ, तो यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टिकलिंग समवन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. द ट्री स्माइल्ड एट द पोएट. यहाँ पे ट्री को स्माइलिंग का क्वालिटी दिया जा रहा है. फिर आता है बच्चों कंपैरिजन. एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, जहां पे दो अलग अलग चीजों के बीच में हम लोग को एक कॉमन क्वालिटी बताते हैं और फिर बताते हैं कि लाइक दोनों के अंदर वो क्वालिटी सेम है करके. वी हैव सीन यहाँ पे कौन से तीन वर्ड्स यूज किए जाते हैं बच्चों लोग? लाइक, एज, सो. सो एज, व्हाइट एज स्नो, सो दैट बिकम्स अ सिमिली. देन चिल्ड्रन, वी सॉ अबाउट रेपिटेशन. रेपिटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट किया जाएगा. जैसे कि एक ही सेंटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बार द रिपीट हुआ था. ठीक है? सो व्हेनेवर वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड विल बी कॉल्ड एज रेपिटेशन. फिर हमने पढ़ा था बच्चों लोग हाइपरबोल के बारे में. इट्स अ एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट. एग्जैजरेशन मींस यू आर अवेयर, ओवर करना बोलते हैं उसको, ड्रामेटिक मीनिंग देने का. एक चीज जिसको हम लोग सीधे तरीके से बोल सकते थे, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा डेकोरेटिव करके ओवर करके बताते. हाँ, तो सब एग्जाम्पल की व्हेन वी से दैट कि whenever we start comparing someone's beauty, then we generally compare them to the moon and all. If example like whenever there is a small thing which is happening, but we tell it at a over exaggerated ideas, they are basically referred to as hyperbole. अच्छा, फिर हमने बात किया था लिटोट्स के बारे में. It's an understatement. अच्छा, a negative meaning is expressed to the affirmative. जैसे कि his singing is not too bad. Not too bad means actually I want to say that his singing is bad. और फिर हमने बात की थी किसके बारे में? मेटाफर. Children, metaphor here means indirect comparison, implicit comparison. दो अलग अलग चीजें, लेकिन उनको कुछ इस तरीके से कंपेयर किया जाता है कि we are directly or indirectly referring to a particular thing as if it is something else. We say that you are a light to the world. You are a light. Children, यहाँ पे you are like a light नहीं बोला, you are लाइट टू द वर्ल्ड. तुम दुनिया के लिए लाइट हो. तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को जो दूसरे लोगों को गाइड करता है उसको हम लोग लाइट का कंपैरिजन दे रहे हैं चिल्ड्रन. सो मेटाफर्स. मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमिली. हर एक मेटाफर को सिमिली में कन्वर्ट किया जाता है, हर एक सिमिली को मेटाफर में कन्वर्ट करता है. सो चिल्ड्रन, दैट वाज अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर. नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर विद अदर टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच दैट वी हैव. चिल्ड्रन, मेनी टाइम्स इन अ पोएटिक लैंग्वेज poets have to express sounds. जब आपने देखा रहेगा कुछ
फ्रेजेस होते हैं जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन के साथ में लिखते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। तो कोई भी वर्ड बच्चों, कोई भी वर्ड जो किसी साउंड को डिस्क्राइब करेगा, इनफैक्ट वो जो वर्ड होता है वो एक्चुअली साउंड होता है, तो दैट इज बेसिकली रिफर टू एज ओनोमेटोपिया। स्पेलिंग की तरफ देखोगे तो ओनोमेटोपोइया वगैरह ऐसे दिखेगा, बट इट्स बेसिकली रिफर टू एज ओनोमेटोपिया। A word resembles a sound that it is describing. Examples बहुत सारे आते हैं बच्चों लोग, जैसे कि you want to say my watch ticks loudly। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है? टिक्स, टिक टिक, वो जो साउंड आता है वॉच का, इट्स अ साउंड। अच्छा, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हुए क्या करोगे? माई वॉच टिक्स लाउडली। आंसर में लिखने का ओनोमेटोपिया, फिर बोलने का कि द साउंड ऑफ वॉच इज एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड टिक्स। Clear? There are n number of examples that we can take, children. A snake, the hissing of a snake. Hiss करके जो snake का sound आता है बच्चों लोग, वो भी एक onomatopoeia होता है. If you just go to jungle or a forest anytime, children, and when there are winds that blow, so sometimes the leaves they make a sound. So we call it like the rustling of leaves. क्या बोलते हैं? The rustling of leaves. And suppose for example, sometimes the sound that is made by thunderstorms, lightning, तो कोई भी आवाज बच्चों लोग किसी वर्ड के जरिए आप तक आएगा तो उस वर्ड को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? ओनोमेटोपिया। ओके, क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपिया। So that is the next example, children. Then we have something related to a paradox. Paradoxes are basically, children, opposite statements which are contradicting themselves. मतलब क्या होता है? अभी आप बोले सर कॉन्ट्राडिक्ट, ये वर्ड हमने और कहां पे सुना है? वी हर्ड इट इन एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस में क्या बोला कि कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज और कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स आर यूज्ड। तो व्हाट्स अ पैराडॉक्स, चिल्ड्रन? पैराडॉक्स में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स को साथ में रखा जाता है और उसको हम लोग रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल मतलब व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट एट फर्स्ट, जैसे आप पहले वो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, यू विल फील कि लाइक हाँ दिस इज इम्पॉसिबल। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, देखो, इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। तो इसका मतलब एक बात तो है कि एवरी पैराडॉक्स वुड एक्चुअली इंक्लूड एन एंटीथेसिस। जैसे कि यहाँ पे रिच एंड पुअर ये वर्ड्स यूज किए गए, तो इसका मतलब एक एंटीथेसिस भी है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है चिल्ड्रन, जैसे कि बोलते कि आई वाज स्टडीइंग नाइट एंड डे, तो आप उसको पैराडॉक्स नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए, नो डाउट। नाउ इफ यू रिफर टू दिस सेंटेंस, चिल्ड्रन, इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा, बोले सर ऐसे कैसे? इंडिया एक गरीब लोगों का अमीर देश है। अब बोले सर हाउ कैन इट हैपन? अगर फॉर एग्जाम्पल लोग गरीब है तो देश कैसे अमीर होता है, और देश अमीर है तो लोग काहे के लिए गरीब होते? फिर मतलब आपको रिकंसाइल नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसका इन डेप्थ मीनिंग समझोगे, जैसे कि इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल मींस दैट दो इंडिया इज वेरी रिच इन ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक है, द एनवायरमेंट, द ट्रीज, फॉरेस्ट, ओके, द लैंड, ऑल दीज थिंग्स मेक इंडिया वेरी रिच. But the people who are staying in India are not able to utilize these resources properly, so they remain poor. अभी आप बोले सर हाँ अभी समझ में आया हम लोगों को. If we sometimes we say success is failure which is turned inside out. सक्सेस क्या होता है? सक्सेस फेलियर ही है, बस हमने उसको इनसाइड आउट टर्न किया हुआ है. तो आप वहां पे भी देख सकते हो, that could be something like a paradox. We say the king has died, long live the king. राजा मर गया, राजा अमर. आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? राजा मर गया तो अमर कैसे रहेगा, और अमर था तो मरा काहे के लिए? हाँ, लेकिन जब आप उसका मीनिंग समझोगे, क्या कि दो फिजिकली द किंग हैज डाइड, लेकिन उसकी जो डीड्स थे, उसने लोगों के लिए जो कुछ भी किया था, उसकी वजह से वो लोगों की याद में हमेशा के लिए रहेगा. अभी आप बोले सर फिर ठीक है करके. सो दैट दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैराडॉक्सेस. जैसे हम लोग पोएम्स में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सबको गेस कैसे करना होता है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, वी आर हियर व्हाट्स रिफर्ड टू एज अ पन. क्या बोलते हैं? पन.
A pun, children, is a play on words which give different meanings to the same word. डबल मीनिंग वाले वर्ड्स जो आएंगे उसको हम लोग इंग्लिश में पन करके बोलते हैं. क्या बोलने का? पन. जैसे कि देयर आर मेनी वर्ड्स चिल्ड्रन, एक ही वर्ड रहेगा लेकिन दो अलग अलग मीनिंग्स आएंगे उसके. तो एक ही वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग आता है तो उसको पन बुलाते हैं हम लोग. जैसे पीपल हु स्टे इन फ्लैट हैव बिकम फ्लैट. यहाँ पे एक ही वर्ड है बच्चों लोग, दो अलग अलग मीनिंग्स बता सकते हैं आपको. कौन सा? फ्लैट. एक फ्लैट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? एक बिल्डिंग के अंदर जो एक रूम होता है उसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं. 1 BHK 2 BHK फ्लैट, राइट? एंड पीपल हैव बिकम फ्लैट, दैट मीन्स पीपल दोज हु स्टे इन द फ्लैट आर, it's not like presently the sentence tries to say that they do not have much feelings. Neighbors में कौन रहते पता नहीं, एक दीवार मतलब 4 दीवारों के अंदर रहते हैं लोग लेकिन they don't care for each other. नाम के लिए वो एक फ्लैट होता है लेकिन फिर लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होता है. So they say that people have become flat. तो आपने देखा यहाँ पे एक ही वर्ड दो अलग अलग मीनिंग्स, that is why it will be referred to as a pun. So बच्चों लोग कभी आप बैठ के ऐसे कुछ वर्ड्स ढूंढ सकते हो जहां पे एक ही वर्ड रहेगा और वो अलग अलग मीनिंग्स दिखाएगा आपको. क्लियर? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ पन. तो ये था बच्चों लोग एक वर्ड का दो मीनिंग्स. क्या बोलते हैं? एक वर्ड का दो मीनिंग्स. अच्छा, देन द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच चिल्ड्रन वी हैव इन लाइन इज सिनेक्डिक. अच्छा, सिनेक्डिक चिल्ड्रन इज बेसिकली व्हाट? Only a part is used to express the whole. क्या बोला? Only a part. एक बड़ा सा चीज है बच्चों लोग, उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं और उस पार्ट के बारे में बात करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग वो पूरी चीज के बारे में बात करते हैं. जैसे पीपल ट्राई टू प्लीज देयर पैलेट. क्या बोला? पीपल ट्राई टू प्लीज देयर पैलेट. पैलेट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? स्टमक. लोग अपने पेट को खुश करना चाहते हैं. पेट खुश नहीं होता है चिल्ड्रन. द पर्सन फील्स हैप्पी व्हेन ही कंज्यूम सम नाइस टेस्टी फूड. तो यहां पे पैलेट वर्ड इज एक्चुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंटायर पर्सन. क्या बोला? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एंटायर पर्सन. तो जब भी किसी एक छोटी सी चीज का बात किया जाएगा और वो एक्चुअली पूरे के पूरे चीज को डिस्क्राइब करेगा इनडायरेक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिनेक्टिक. So here in this sentence children, when we say palate, when we say, अच्छा, कभी हम लोग बोलते हैं कि लाइक इंडिया का किसान है वो दुनिया का पेट भरता है. पेट भरता है मतलब क्या होता है बच्चों? पेट मतलब इट्स नॉट स्टमक. वो लोगों को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे. क्लियर? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सिनेक्डिक. अच्छा, इन लाइन चिल्ड्रन वी ऑल्सो कम टूवर्ड्स वन मोर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज रिफर्ड टू एज मेटोनिमी. अच्छा, पहले डिस्क्रिप्शन देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे. When we speak of something which is closely associated with some other thing, क्या बोला है? हम लोग किसी चीज की बात करेंगे लेकिन हमारा इशारा उसकी तरफ नहीं होगा, हम लोग किसी और चीज के बारे में बताना चाहते हैं आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम लॉयल टू द क्राउन. क्या बोला है? आई एम लॉयल टू द क्राउन. अभी यहाँ पे क्राउन का मीनिंग क्या होता है? ताज, राइट? कौन पहनता है? राजा. सो चिल्ड्रन व्हेन वी से कि लाइक मैं बहुत वफादार हूं या फिर मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूं, किसको? क्राउन को. तो क्राउन वर्ड एक्चुअली मीन्स द किंग. सो आई एम वेरी लॉयल टू द किंग. जैसे बच्चों लोग कि सपोज कि व्हेनेवर वी आर रिफरिंग, तो वी डोंट यहां पे क्राउन वर्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हाट? द किंग. So when we are talking about the crown, what we don't mean the crown, we actually mean the king. Clear? अच्छा, farmer grows gold in his field. अच्छा, एक गाना सुना रहेगा आपने, मेरे देश की धरती सोना उगले. खेत में क्या उगा है? सोना. Here we are calling it gold children, but it is not the gold. We are actually referring to the crops which are grown in the fields. किसकी बात करें हम लोग? क्रॉप्स की. तो यहाँ पे गोल्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ क्रॉप्स. क्लियर? अच्छा, उसने मतलब फॉर एग्जाम्पल खूबसूरती का ताज जीता है. ताज, वहां पे वो जो क्राउन होता है ना बच्चों लोग, वो इमेज फॉर एग्जाम्पल है. फिर ऑलिव का क्राउन पहनाया जाता है जब ओलंपिक्स में आप कुछ मेडल जीतते हो तब. तो चीजें है ना हम लोगों को कुछ और चीज बताती है. आपके हाथ में जब कप दिखता है ना, कप क्रिकेट
वर्ल्ड कप, तो आपको पता चलता है कि इन्होंने कुछ मैच जीता है. सो द क्राउन और द कप इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विक्ट्री. आप देखोगे एक चीज का बात करने का मीनिंग किसी और चीज से निकलेगा, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? मेटोनिमी. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मेटाफर एंड मेटोनिमी. मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन चिल्ड्रन, सपोज फॉर एग्जांपल, when you're talking about metonymy, we will be referring to one thing which is closely associated with some other thing. Yes, the next figure of speech, children, it's oxymoron. Oxymoron का मतलब क्या होता है? चलो, एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही फ्रेज के अंदर दो वर्ड्स रहेंगे जो एक दूसरे को पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. I am not saying कि like they are just opposite. I am saying they are going to contradict each other. That means you will feel again, हाँ, so it's not possible. The girl next door is pretty ugly. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, it's quite clear for you. क्या बोला है? The girl next door is pretty ugly. चलो, what do you mean here? Pretty ugly का मतलब क्या होता है? Pretty ugly. Pretty का मतलब तो खूबसूरत होता है. Ugly मतलब क्या होता है? बदसूरत होता है. लेकिन द गर्ल नेक्स्ट डोर इज प्रिटी अगली. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से लाइक वो बदसूरत है, लेकिन साथ में मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? प्रिटी. तो एक ही फ्रेज है प्रिटी अगली, लेकिन अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज ऑक्सीमोरन. तो चिल्ड्रन, वी हैव गॉट समथिंग लाइक एक तो आता है एंटीथेसिस, दूसरा होता है क्या? यू रिमेंबर वन मोर? पैराडॉक्स. तीसरा क्या होता है? ऑक्सीमोरन. नाउ वी विल, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं. व्हेन वी आर लर्निंग विद द पोएम्स, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं आपस में. क्लियर? सो एक ही सेंटेंस में ऑपोजिट आइडियाज बताए गए, ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए, तो क्या बोलोगे? एंटीथेसिस. अच्छा, कुछ ऐसे आइडियाज है जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन उसको हम लोग रिकंसाइल करते हैं, समझाते हैं, अंदर का मीनिंग समझने के बाद क्लियर होता है, तो इट्स कॉल्ड ए पैराडॉक्स. और एक ही फ्रेज में दो अलग अलग वर्ड्स जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, देन चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन. ये सब ट्रिक से याद रखना होता है बच्चों लोग. साउंड रिपीट करेगा तो एलिट्रेशन, पूरा वर्ड रिपीट करता है तो रेपिटेशन. राइट? अच्छा, अब एक वर्ड आया था थोड़ी देर पहले, पन. पन को क्या बोला मैंने? एक वर्ड, डबल मीनिंग. इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, वी हैव गॉट वन मोर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज रिफर्ड टू एज टॉटोलॉजी. व्हाट इट्स कॉल्ड? टॉटोलॉजी. When two different words convey the same meaning. क्या बोला? When two different words convey the same meaning, it will be referred to as tautology. What is called? Tautology. दो अलग अलग वर्ड्स एक में, तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक वर्ड डबल मीनिंग पन, दो वर्ड सेम मीनिंग टॉटोलॉजी. यस. फॉर एग्जाम्पल, his head will not toss or spin. Toss और spin दोनों का वर्ड मतलब एक ही है बच्चों लोग. टॉस करना है फिर स्पिन करना, मीनिंग सेम होता है. एंड आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. स्ट्रेन और स्ट्रेस चिल्ड्रन, दे वुड एक्चुअली कन्वे द सेम मीनिंग. क्या बोला है? आई वुड कन्वे द सेम मीनिंग. सो दो अलग अलग वर्ड्स बच्चों लोग जब एक ही मीनिंग बताते तो उसको हम लोग टॉटोलॉजी बोलते. ठीक है? नाउ these are the basic figures of speech children which will be covering in our syllabus. ठीक है? If there are more figure of speech which we require, I'll be letting you know about them when we proceed with our poems and the lectures. Till then, goodbye. See you again for our next lecture जहाँ पे हम लोग poem discuss करने वाले हैं. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye.